السلام علیکم. یہ 14 جولائی 1948 کا دن تھا جب اس وقت کے گورنر جنرل محمد علی جناح کو ان کی عدالت کے پیش نظر کوئٹہ سے زیارت منتقل کیا گیا تھا. اس کے بعد کہ وہ فقط 60 دن زندہ رہے اور 11 ستمبر 1948 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. بابائے پاکستان کے یہی آخری 60 دن اس پوڈ کاسٹ کا موضوع ہے. آپ آزاد ہیں, آزاد رہیں. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی عبادت گاہوں, مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے. آپ کا مذہب کیا ہے, ذات کیا ہے, قوم کیا ہے, اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں. And the life and the property and the religious belief. محمد علی جناح کی حالت آئندہ کچھ روز میں اتنی بہتر ہو گئی کہ 3 اگست کو ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے ان سے لاہور جانے کی رخصت بھی حاصل کر لی. بظاہر اس کا سبب یہ نظر آتا ہے کہ چند دن بعد عید آنے والی تھی اور ڈاکٹر الہی بخش یہ عید اپنے اہل خانہ کے ساتھ منانا چاہتے تھے. مگر ابھی انہیں لاہور پہنچے ایک دن گزرا تھا کہ انہیں ڈاکٹر عالم کے ساتھ شعاؤں کے ذریعے علاج کرنے کا آلہ الٹرا وائلٹ ایپریٹس لے کر فوراً زیارت لوٹنے کی تاکید کی گئی اور 6 اگست کو یہ آلہ لے کر زیارت پہنچ گئے. ڈاکٹر ریاض حسین شاہ نے انہیں بتایا کہ ان کی غیر حاضری میں جناح بہت کمزور ہو گئے اور ان کا بلڈ پریشر بہت گر گیا تھا, مگر انجیکشن لگانے سے ان کی حالت کچھ بہتر ہو گئی تھی. اگلے دن 7 اگست 1948 کو عید الفطر تھی. اسی شام برقی شعاؤں سے جناح کے علاج کا آغاز ہوا, مگر یہ انہیں موافق نہیں آیا اور ان کے پیروں پر کچھ ورم سا ہو گیا. 9 اگست کو ڈاکٹروں نے رائے دی کہ زیارت کی بلندی مریض کے حق میں اچھی نہیں اور انہیں کوئٹہ منتقل کر دینا چاہیے. جناح پہلے تو 15 اگست سے پہلے سفر کے لیے آمادہ نہیں تھے, کیونکہ اسی سال جون میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ یوم آزادی 15 کے بجائے 14 اگست کو منایا جائے گا. لیکن اپنے معالجین کے اصرار پر وہ 13 اگست کو کوئٹہ جانے پر رضامند ہو گئے. جناح کے زیارت کے قیام کے زمانے کی بات ہے کہ ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے فاطمہ جناح سے پوچھا, آپ کے بھائی کو کچھ کھانے پر کیسے آمادہ کیا جائے, ان کی خاص پسند کا کوئی کھانا بتائیں. فاطمہ جناح نے بتایا کہ بمبئی میں ان کے ہاں ایک باورچی ہوا کرتا تھا جو چند ایسے کھانے تیار کرتا تھا کہ بھائی ان کو بڑی رغبت سے کھاتے تھے. لیکن پاکستان بننے کے بعد وہ باورچی کہیں چلا گیا. انہیں یاد تھا کہ وہ لائل پور کا رہنے والا تھا اور کہا کہ شاید وہاں سے اس کا کچھ اتا پتا مل سکے. یہ سن کر ڈاکٹر صاحب نے حکومت پنجاب سے درخواست کی کہ اس باورچی کو تلاش کر کے فوراً زیارت بھجوایا جائے. کسی نہ کسی طرح وہ باورچی مل گیا اور اسے فوراً ہی زیارت بھجوا دیا گیا. تاہم جناح کو اس کی آمد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا. کھانے کی میز پر انہوں نے اپنے مرغوب کھانے دیکھتے ہوئے تعجب کا اظہار کیا اور خوش ہو کر خاصا کھانا کھا لیا. جناح نے استفسار کیا کہ آج یہ کھانے کس نے بنائے ہیں, تو ان کی بہن نے بتایا کہ حکومت پنجاب نے ہمارے بمبئی والے باورچی کو تلاش کر کے یہاں بھجوایا ہے اور اس نے آپ کی پسند کا کھانا بنایا ہے. جناح نے بہن سے پوچھا کہ اس باورچی کو تلاش کرنے اور یہاں بھجوانے کا خرچ کس نے اٹھایا ہے. عرض کیا کہ یہ کارنامہ حکومت پنجاب نے انجام دیا ہے, کسی غیر نے تو خرچ نہیں کیا. پھر جناح نے باورچی سے متعلق فائل منگوائی اور اس میں لکھا کہ گورنر جنرل کی پسند کا باورچی اور کھانا فراہم کرنا حکومت کی کسی ادارے کا کام نہیں ہے. خرچ کی تفصیل تیار کی جائے تاکہ میں اسے اپنی جیب سے ادا کر سکوں. اور پھر ایسا ہی ہوا. جناح زیارت میں 1 ماہ قیام کے بعد جب 13 اگست 1948 کی شام کوئٹہ واپس پہنچے تو انہوں نے اپنی معالجوں سے کہا, بہت اچھا کیا کہ آپ مجھے یہاں لے آئے. زیارت میں مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے پنجرے میں بند ہوں. کوئٹہ پہنچنے کے بعد 16 اگست کو ان کے معالجین نے ایک مرتبہ پھر ان کے ایکس رے اور دیگر ٹیسٹ کیے. ایکس رے کے نتائج سے معلوم ہوا کہ جناح کی صحت بتدریج بہتر ہو رہی ہے اور ٹیسٹ کے نتائج نے بھی اسی رائے کو تقویت دی.
चुनाचे मुआलिजीन ने जिना को मसरूफ रखने के लिए उनको अखबारात के मुताले की इजाजत दे दी और उन्हें बाज दफ्तरी फाइलें निपटाने से भी मना नहीं किया गया। कोयटा पहुंचने के बाद जिना की सेहत चंद रोज के लिए इस कदर संभल गई थी कि वो थकान महसूस किए बगैर रोजाना 1 घंटा काम करने लग गए थे। उनका मैदा भी बेहतर काम कर रहा था, यहाँ तक कि एक दिन उन्होंने डॉक्टरों के मशवरे के बावजूद हलवा पूरी तैयार करवा के शौक से खाई। चंद दिन बाद उन्होंने डॉक्टरों की इजाजत से सिगरेट नोशी भी शुरू कर दी। डॉक्टरों का ख्याल था कि अगर कोई आदी सिगरेट नोश बीमारी के दौरान सिगरेट तलब करे तो ये उसकी सेहत की जानिब लौटने की अलामत होता है। अब डॉक्टरों ने जिना की सेहत का मजीद जायजा लेते हुए उनसे गुजारिश की कि उन्हें कोयटा से कराची मुंतकिल हो जाना चाहिए, लेकिन जिना स्ट्रेचर पर लेटे लाचार कैफियत में गवर्नर जनरल हाउस नहीं जाना चाहते थे। उनसे बार बार दरख्वास्त की गई तो वो इस शर्त पर कराची जाने पर आमादा हो गए कि वो गवर्नर जनरल हाउस में नहीं बल्कि मलीर में नवाब ऑफ बहावलपुर की रिहाइशगाह में क़याम करेंगे। इन दिनों नवाब ऑफ बहावलपुर इंग्लिस्तान में मुकीम थे। जिना से कहा गया कि उनकी क़यामगाह में रिहाइश के लिए उनको एक खत तहरीर करना पड़ेगा, तो उनकी असूल पसंदी ने उन्हें ये खत तहरीर करने की इजाजत नहीं दी। वो नहीं चाहते थे कि वो मुमलिकत के गवर्नर जनरल होते हुए अपनी मुमलिकत में शामिल एक रियासत के नवाब से किसी किस्म की सहूलत हासिल करने के लिए बाकायदा इजाजत तलब करें। 29 अगस्त 1948 को डॉक्टर इलाही बख्श ने जिना का एक मरतबा फिर मुआयना किया। वो लिखते हैं, कायदे आजम का मुआयना करने के बाद मैंने ये उम्मीद जाहिर की कि जिस रियासत को आप वजूद में लाए हैं उसे पूरी तरह मुस्तहकम और इस्तवार करने के लिए भी देर तक जिंदा रहे। मेरे वहमो गुमान में भी ये न आया था कि मेरे जज्बात से वो गमगीन हो जाएंगे। उनके ये अल्फाज और उनका अफसुर्दा और यास अंगेज लहजा मैं कभी नहीं भूल सकता। जिना ने डॉक्टर इलाही बख्श को मुखातिब करके कहा, आपको याद है जब आप पहली बार जियारत आए थे तो मैं जिंदा रहना चाहता था, लेकिन अब मेरा मरना जीना बराबर है। डॉक्टर इलाही बख्श लिखते हैं कि ये अल्फाज ज़बान से अदा करते वक्त उनकी आंखों में आंसू आ गए। एक ऐसे शख्स को आप दीदा देखकर जिसे जज्बात से यकसर आरी और फौलाद की तरह सख्त समझा जाता था, डॉक्टर इलाही बख्श दंग रह गए। जिना की तबीयत बतदरीज बेहतर होने लगी, इसलिए जिना की मुज़महिल तबीयत से उन्हें और भी हैरानी हुई। उन्होंने वजह दरियाफ्त की तो जिना ने फरमाया, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। डॉक्टर इलाही बख्श लिखते हैं कि इस जवाब से मेरी उलझन और बढ़ गई और ख्याल हुआ कि वो असल बात पोशीदा रखना चाहते हैं और जो वजह उन्होंने बयान की है वो यूं ही टालने के लिए है। मैं रह रह कर सोचता था कि क्या आज से 5 हफ्ते पहले उनका काम नामुकम्मल था और अब यकायक पाया तकमील को पहुंच गया है। मैं ये महसूस किए बगैर ना रह सका कि कोई बात जरूर है जिसने उनके जीने की आरज़ू मिटा दी है। यही वाकया फातिमा जिना ने भी तहरीर किया है, मगर कदरे मुख्तलिफ अल्फाज में। वो लिखती हैं, अगस्त के आखिरी दिनों में जिना पर अचानक मायूसी का गलबा हो गया। एक दिन मेरी आंखों में गौर से देखते हुए उन्होंने कहा, फाती, अब मुझे जिंदा रहने में कोई दिलचस्पी नहीं, मैं जितनी जल्द चला जाऊं उतना ही बेहतर है। ये बदशगुनी के अल्फाज थे। मैं लरज उठी, जैसे मैंने बिजली के नंगे तार को छू लिया हो। फिर भी मैंने सब्र ज़ब्त से काम लिया और कहा, जिन, आप जल्द ही अच्छे हो जाएंगे, डॉक्टरों को पूरी उम्मीद है। मेरी ये बात सुनकर वो मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट में उदासी छुपी थी। उन्होंने कहा, नहीं, अब मैं जिंदा रहना नहीं चाहता। 1 सितंबर 1948 को जिना ने जियारत से बरी फौज के सरबराह जनरल डगलस ग्रेसी के नाम एक खत तहरीर किया, जो बदकिस्मती से उनकी आखिरी तहरीर साबित हुई। इस खत में उन्होंने लिखा, मैंने आपके खत की एक नकल कायदे आज़म रिलीफ फंड के नायब सदर को भेज दी है और मैंने इस फंड में से 3 लाख रुपए की इमदाद की मंजूरी दे दी है, जो थल प्रोजेक्ट के महाजिर फौजियों की बहबूद के लिए मखसूस है। इसी रोज डॉक्टर इलाही बख्श ने मायूसाना लहजे में मोहतरमा फातिमा जिना को बताया कि उनके भाई को हेमरेज हो गया है और उन्हें फौरन कराची ले जाना चाहिए, क्योंकि कोयटा की बुलंदी उनके लिए मौजू नहीं है। अगले आने वाले दिनों में जिना की तबीयत मजीद बिगड़ती चली गई। 5 सितंबर को डॉक्टरों ने तशखीस किया कि उन पर नमूनिया का हमला भी हुआ है। डॉक्टर इलाही बख्श ने अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर मिर्जा अबू अल हसन इस्फहानी को लिखा कि वो जिना के लिए चंद डॉक्टरों को भिजवा दें। इन डॉक्टरों के नाम डॉक्टर फयाज अली शाह ने तजवीज़ किए थे। इसी दौरान डॉक्टर इलाही बख्श ने कराची से डॉक्टर मिस्त्री को भी कोयटा बुलवा दिया, मगर इसके बावजूद जिना की तबीयत में कोई अफाका नहीं हुआ और उनकी
नकाहत में इजाफा होता चला गया। ये उन्हीं दिनों की बात है जब जिना के सेक्रेटरी फरूख अमीन ने जिना से किसी की मुलाकात करवाना चाही तो डॉक्टर इलाही बख्श ने उनके कई बार इसरार करने पर भी ये इजाजत देने से इनकार कर दिया। डॉक्टर इलाही बख्श ने लिखा है कि उन्हें इस मुलाकाती का नाम नहीं बताया गया था, ताहम इस वक्त के हैदराबाद दक्कन के वजीर आजम मीर लायक अली ने अपनी किताब ट्रेजेडी ऑफ हैदराबाद के एक बाब में, जिसका उन्वान जिना ऑन डेथ बेड है, में लिखा है कि ये मुलाकाती वो खुद थे। ताहम इसरार करने के बावजूद जिना से मुलाकात में कामयाब नहीं हो सके। 10 सितंबर 1948 को डॉक्टर इलाही बख्श ने फातिमा जिना को मुतला किया कि अब जिना के जिंदा बचने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही और ये कि अब वो फकत चंद दिनों के मेहमान हैं। गालिबन उसी दिन जिना पर बेहोशी का एक गलबा हुआ। इस बेहोशी के आलम में उनकी जबान से बेरब्त अल्फाज अदा हो रहे थे। वो बुड़बुड़ा रहे थे, कश्मीर, उन्हें फैसला करने का हक दो, आइन, मैं उसे मुकम्मल करूंगा बहुत जल्द, मुहाजिरीन, उन्हें हर मुमकिन मदद दो। 11 सितंबर 1948 को जिना को स्ट्रेचर पर डालकर उनके वाइकिंग तैयारे तक पहुंचा दिया गया। जब उन्हें तैयारे तक ले जाया जा रहा था तो अमले ने उन्हें सलामी दी और फिर सब ये देखकर हैरान रह गए कि जिना ने इंतहाई नकाहत के बावजूद फौरन ही उनका जवाब दिया। उनके हाथ की जुम्बिश से महसूस होता था कि उन्हें बिस्तरे मर्ग पर भी नज़्म ज़ब्त के तकाज़ों का मुकम्मल एहसास था। कोयटा से कराची तक का सफर 2 घंटे में तय हुआ। इस दौरान जिना बड़े बेचैन रहे। उन्हें बार बार ऑक्सीजन दी जाती रही। ये फर्ज कभी फातिमा जिना और कभी डॉक्टर इलाही बख्श अदा करते रहे। डॉक्टर मिस्त्री, नर्स डनहम, नेवल एडीसी लेफ्टिनेंट मजहर अहमद और जिना के असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी फरूख अमीन भी इसी तैयारे में सवार थे। तैयारा जिना को लेकर दोपहर 4:15 बजे मारीपुर के एयरपोर्ट पर उतरा। जिना की हिदायत पर उन्हें लेने के लिए आने वालों में ना हुकूमत का कोई अहम रुकन मौजूद था, ना ही जिलाई इंतजामिया उनकी आमद से बाखबर थी। एयरपोर्ट पर उनका खैर मकदम करने वालों में गवर्नर जनरल के मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट कर्नल जेफरी नोल्स के अलावा और कोई भी नहीं था। गवर्नर जनरल के स्टाफ ने उन्हें स्ट्रेचर पर डालकर फौजी एम्बुलेंस में मुंतकिल किया। फातिमा जिना और फिलिस डनहम उनके साथ बैठ गईं, जबकि डॉक्टर इलाही बख्श, डॉक्टर मिस्त्री और कर्नल जेफरी जिना की कैडिलैक कार में सवार हो गए। जिना की एम्बुलेंस ने अभी फकत 4 मील का फासला तय किया होगा कि उसका इंजन पेट्रोल खत्म होने के बायस एक झटके के साथ बंद हो गया। इसी के साथ एम्बुलेंस के पीछे पीछे आने वाली कैडिलैक कार, सामान बरदार ट्रक और दूसरी गाड़ियां भी रुक गईं। कायद की हालत इस काबिल नहीं थी कि रास्ते में बिला वजह एक लम्हा भी जाया किया जाता। ड्राइवर 20 मिनट तक इंजन को ठीक करने की जिद्दोजहद करता रहा। आखिर फातिमा जिना के हुक्म पर मिलिट्री सेक्रेटरी अपनी कार में एक और एम्बुलेंस लेने के लिए रवाना हो गए और डॉक्टर मिस्त्री भी उनके साथ थे। उधर एम्बुलेंस में शदीद हब्स का आलम था। सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। इस बेचैनी पर मुस्तजाद वो सैकड़ों मक्खियां थीं जो जिना के चेहरे के इर्द गिर्द मंडला रही थीं और उनमें उन्हें उड़ाने की सक्कत न थी। फातिमा जिना और सिस्टर डनहम बारी बारी उन्हें गद्दे के एक टुकड़े से पंखा झलती रही। हर लम्हा बड़ी अजियत में गुजर रहा था। कर्नल नोल्स और डॉक्टर मिस्त्री को गए हुए बड़ी देर हो गई थी, लेकिन ना फौजी एम्बुलेंस का इंजन दुरुस्त हुआ और ना कोई और मुतबादिल इंतजाम हो सका। डॉक्टर इलाही बख्श और डॉक्टर रियाज बार बार अपने कायद की नब्ज देखते थे जो बतदरीज डूब रही थी। बाबा कौम को एम्बुलेंस से कार में मुंतकिल करना भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि स्ट्रेचर कार में रखा नहीं जा सकता था और खुद जिना में इतनी सकत नहीं थी कि वो कार में बैठ या लेट सकते। इस मौके पर यह अमर इतना ताज्जुब खेज है कि दारुल हुकूमत किसी ने ये जानने की जहमत भी ना की कि जिना 4:15 बजे एयरपोर्ट पर उतरने के बावजूद अभी तक गवर्नर जनरल हाउस क्यों नहीं पहुंचे। उनका काफिला कहाँ है और उनकी तबीयत कैसी है। बाज लोग कहते हैं कि जिना की कराची आमद राज रखी गई थी, मगर क्या वाकई हुकूमत के आला ओहदेदारान उनकी आमद से बाखबर ना थे? क्या किसी को ये भी खबर नहीं थी कि उसी सुबह गवर्नर जनरल का खुसूसी तैयारा कोयटा भेजा गया है और शाम में किसी भी वक्त दारुल हुकूमत में उनकी आमद मुतवक्के है। वाकफान हाल बताते हैं कि 4 सितंबर 1948 को जब काबीना के सेक्रेटरी जनरल चौधरी मोहम्मद अली गवर्नर जनरल की नाजुक हालत देखकर कराची वापस पहुंचे थे, तो उसी शाम वजीर आजम हाउस में काबीना का हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ था। ये नामुमकिन है
कि उस इजलास में जिना की बीमारी ज़ेर बहस ना आई हो। इसके बाद जब मीर लायक अली गवर्नर जनरल से मिले बगैर कराची वापस लौट आए तो उन्होंने गुलाम मोहम्मद की रिहाइशगाह पर लियाकत अली खान, चौधरी मोहम्मद अली और सर जफरुल्लाह खान को जिना की इंतहाई तशवीशनाक हालत से आगाह किया और बकौल मीर लायक अली के तमाम अफराद हैरत ज़दा रह गए थे। इस पस मंजर में जिना की कराची आमद से हुकूमत के कारपरदाजों की बेनियाजी और बेखबरी तस्वीर के किस रुख की निशानदही करती है। ये सवाल आज भी लम्हाए फिक्रिया है। पाकिस्तान में इंडिया के पहले हाई कमिश्नर श्री प्रकाश ने अपनी किताब पाकिस्तान कयाम और इब्तदाई हालात में भी इस वाक़ये का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि उन दिनों मकामी रेड क्रॉस के इंचार्ज जमशेद मेहता थे, जिनकी इज्जत कराची का हर फर्द करता था। बाद में उन्होंने मुझे बताया कि मुझे शाम को पैगाम मिला कि एक आदमी बहुत कलील है, क्या आप उसके लिए एम्बुलेंस भेज सकते हैं। ये वाकया 5:30 बजे शाम का है। खुदा खुदा करके कर्नल नोल्स और डॉक्टर मिस्त्री एक दूसरी एम्बुलेंस लेकर वापस आए। कयास किया जा सकता है कि ये वही एम्बुलेंस होगी जिसका जिक्र श्री प्रकाश ने किया है। जिना को स्ट्रेचर पर डालकर इस एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया और यूं शाम 6:10 पर वो गवर्नर जनरल हाउस पहुंचे। एयरपोर्ट से रिहाइशगाह तक का 9 मील का फासला, जो ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट में तय हो जाना चाहिए था, तकरीबन 2 घंटे में तय हुआ। यानी 2 घंटे कोयटा से कराची तक और 2 घंटे एयरपोर्ट से गवर्नर जनरल हाउस तक। ये तकलीफ दे सफर जिना ने इस कसम पुरसी के आलम में किया कि हमारी तारीख में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है और ना ही कोई तौजीह। श्री प्रकाश ने अपनी किताब में तहरीर किया है कि मिस्टर जिना के इंतकाल के वक्त फ्रांसीसी सफारत खाने में कॉकटेल पार्टी हो रही थी। मैंने उस पार्टी में नवाब ज़्यादा लियाकत अली खान से मिस्टर जिना के आने का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि मिस्टर जिना सादा मिजाज आदमी है, इसलिए उन्होंने इसको पसंद नहीं किया कि उनकी आमद के वक्त हंगामा हो। गवर्नर जनरल हाउस पहुंचने के बाद जिना फकत 4.25 घंटे जिंदा रहे और इस दौरान वो तकरीबन गनूदगी के आलम में रहे। डॉक्टर ने उन्हें ताकत का एक इंजेक्शन लगाया और डॉक्टर इलाही बख्श के बकौल जब उन्होंने होश में आने पर जिना से कहा कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे तो उन्होंने आहिस्तगी से कहा, नहीं, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। डॉक्टर इलाही बख्श के मुताबिक ये कायदे आजम मोहम्मद अली जिना के आखिरी अल्फाज थे। डॉक्टर रियाज अली शाह ने लिखा है कि जिना के आखिरी अल्फाज अल्लाह पाकिस्तान थे, जबकि फातिमा जिना माय ब्रदर में लिखती हैं, जिना ने 2 घंटे की पुरसकून और बेखलल नींद के बाद अपनी आंखें खोली, सर और आंखों से मुझे अपने करीब बुलाया और मेरे साथ बात करने की आखिरी कोशिश की कि लबों से सरगोशी के आलम में निकला, फाती खुदा हाफिज, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर उनका सर दाएं जानिब को आहिस्तगी से ढलक गया और उनकी आंखें बंद।